like to just request all of you guys to please start taking a seat so we can get on to the next session. In the meantime, just a quick word of thanks to our sponsors, Jaipur for being the gift partner and for Morgan Stanley as a gold sponsor. Again, just a reminder, if you could please tweet about the event. The hashtag is iDay, and please mention Tide Delhi as well as iDay, and you can download the app to get real-time developments. We'll move on to the next session, and this is an extremely interesting and innovative session that's been put together as part of the next wave of users. The session will be moderated by Sahil Kini, and I'll just give a quick background on Sahil. He is a principal at Aspada Investment Advisors, which is a $100 million early-stage investment firm focused on investments in financial services, SME enablement, and technology for the underserved markets. He sits on the board of Reverie Technologies, Asan Jobs, and Dunzo. Sahil was also part of the core team that built India Stack. He was previously at Titan, EasyTap, and McKinsey. I'll let Sahil explain a little bit about the format of the session as well as some of the profiles of the speakers. Sahil, over to you. This is a first as far as all the panels that I've ever been to, all the conferences that I've ever been to. The first user panel that we've actually done with people who are from the next 300 million users, the next wave of users. I'm very excited for this panel. So the panel will be in Hindi. So I'm going to switch now to Hindi. We're going to go around. This panel is going to be less about survey questions and, you know, do you use a mobile phone? How do you use it? This is not the kind of stuff that's, I think, makes for interesting conversation. So this panel is going to be focused on stories, on how their experience has been, what they've been using mobile phones for. So before I kind of get into it, I'm going to switch to Hindi now and introduce everyone. तो इस रोमांचक और बिल्कुल दिलचस्प पैनल पे आप सबका स्वागत है और मेरा नाम साहिल किनी है, नमस्कार। मेरे साथ हैं भागवत सिंह नेगी जी जो उत्तराखंड से हैं और रेलवेज़ में काम करते हैं, बबीता जी जो अपना एनजीओ चलाते हैं, स्कूल टीचर रहे हैं और अभी गृहिणी हैं और फरीदाबाद से हैं, बाल गोविंद जी जो सीतापुर में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, युक्ति शर्मा जी जो डीटीयू में स्टूडेंट हैं और ध्रुव कुमार जी जो बाराबंकी से हैं और वीडियोग्राफी का काम करते हैं। तो प्लीज़ गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो पहले हम एक्चुअली बाल गोविंद जी से शुरू करेंगे। तो आप बच्चों को सिखाते हैं और छोटे गांव में, छोटे स्कूल में आप टीचर हैं, तो आप जब मोबाइल फ़ोन और जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपके जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं क्या? जी नमस्कार। निश्चित रूप से मैं गांव देहात में ही रहता हूं और गांव देहात से ही हमारी जो स्कूल है वहां गांव देहात का ही है, तो वहां पर आप इतना अवेयर नहीं है इंटरनेट के बारे में। तो मैं शुरू में जब गया वहां पर तो लोगों को अभी तक टीवी भी नहीं देखा था उन्होंने, तो मैंने वहाँ पर इंटरनेट अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, यूट्यूब के माध्यम से शुरू किया उसको दिखाना। तो लोग मजाक बनाते थे, कहते थे कि ये क्या दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं, पढ़ाते नहीं हैं। धीरे धीरे अवेयर हुआ, लोग जानने लगे कि हाँ ये मास्टर साहब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कोशिश हमारी सफल रही। और मैं टीचर हूँ तो ये जो सिखाता हूँ तो सिखाता हूँ, साथ में ही मैं लगभग हज़ारों लोगों को इंटरनेट के माध्यम से शुरू किया उसको सिखाना। तो अब बहुत लोग गांव में जानने लगे हैं। बढ़िया बढ़िया है। और आप जो हैं शेयर चैट के भी यूज़र हैं ना? जी, मैं लगभग सभी कंपनियों के जो सोशल साइट्स और एप्लीकेशन है उसमें मैं सब में जुड़ा हुआ हूँ। जी, और जब आप यूज़ करते हैं तो मोस्टली हिंदी में ही यूज़ करते होंगे? जी, मैं खुद कवि हूँ तो कविता जो लिखता हूँ मैं हिंदी में ही लिखता हूँ और हिंदी ही वर्णमाला मेरी है, तो सारी चीज़ें जो है। आप अपनी कविताएं फ़ोन पे लिखते हैं क्या? जी, आप कविताएं अपने फ़ोन पे लिखते हैं क्या? जी मैं फ़ोन पर ही लिखता हूँ। बहुत से कीपैड होते हैं जी, जैसे नोटपैड एक है, उस पर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद अपना सोशल साइट पर डाल देता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है।
टीचर से स्टूडेंट तक चले जाते हैं। युक्ति जी, नमस्ते। आप अभी रेड कारपेट जो है उसके भी कस्टमर हैं। हाँ। रेड कारपेट एक स्टूडेंट लेंडिंग स्टार्टअप है, तो उस पे आपने जो लोन लिया था किस पर्पस के लिए लिया था? लोन मुझे ज़रूरत पड़ी जब मैंने शुरू किया कॉलेज, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं बस से ट्रैवल करती थी, तो रोहिणी सेक्टर 16 मुझे बहुत दूर पड़ता था। अराउंड 2 आवर्स मुझे लगते थे वहाँ पहुँचने में। तो जी। मैंने सोचा कि मैं पीजी लेती हूँ। फिर मैंने पीजी लिया, तो पीजी में दिक्कत ये होती थी कि हर टाइम मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं होते थे। तो 2 साल पहले मैंने सुना कि मेरे कॉलेज में एक स्टार्टअप है रेड कार्पेट। उन्होंने बोला कि हम आपको पैसे पे करेंगे, शुरू में हम आपको 10,000 की लिमिट देते हैं, आप उसे यूज़ करो और हमें इंस्टॉलमेंट्स में उसे पे करो। तो मेरे पास एक ज़रिया था इनकम का, छोटी इनकम का, कि मैं check.com पे रजिस्टर्ड थी और मैं वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करती थी जिसके लिए वो मुझे पे करते थे। तो मेरे पास इंस्टेंटली इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी इंटर्नशिप पे इन्वेस्ट करूँ या बुक्स पे इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने शुरू किया कि मैं उधर से लोन लेती थी और उन्हें पे करती थी check.com से, जो मुझे पेमेंट मिलता था उससे। check.com क्या होता है? check.com इज़ अ वेबसाइट जिस पे यूएसए और फॉरेनर्स क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं वो इंडिया में एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, और जो इंडिया में एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो वो क्वेश्चंस मुझे पर क्वेश्चन पे करते हैं। और उसके तो बारे में आपको कैसे पता चला कि ऐसा चीज़ है? उसके बारे में मुझे पता लगा जब वो मेरे कॉलेज में आए। तो कॉलेज में एक कंपनीज जैसे आती हैं फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे आपको पे करेंगे, हम आपका एक एग्ज़ाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर करने को मिलेगा और हम आपको एज एन एक्सपर्ट हायर करेंगे। तो आई एम फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पर इट बेसिकली कम्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग। हाँ। तो सिविल के क्वेश्चंस वहाँ पर पोस्ट होंगे और मैंने एक एग्ज़ाम दिया जो क्लियर हुआ, तो उन्होंने एक एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट मुझे हायर किया। बढ़िया। तो आपने वो जो 10,000 का जो लोन लिया था, हाँ। उसको रीपे कर दिया? हाँ, उसे मैंने रीपे किया उसी पेमेंट से, क्योंकि मुझे पर क्वेश्चन अराउंड 200 रुपीज़ मिलते हैं। तो वो मंथ में अगर मैं अराउंड 10 क्वेश्चंस भी आंसर करूँ तो मैं महीने का इंस्टॉलमेंट्स निकाल लेती हूँ। अरे वाह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। फाइनेंशियल इंक्लूजन। बबीता जी, आप पे आते हैं। आप कविताएं लिखती हैं जी। प्रतिलिपि पे, हाँ जी। वो कैसे शुरू हुआ? आप उसके बारे में कैसे, मतलब आप थोड़ा बताइए ना। मेरे को कविता लिखने का शौक़ है और हिंदी में लिखने का शौक़ है। तो जब मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, शुरू में बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि हिंदी वर्णमाला लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर अवेलेबल नहीं थी। मेरा भतीजा है, वो उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि इनपुट टूल्स हैं, गूगल इनपुट टूल्स, उस पर जाकर के आप लिखिए हिंदी में और फिर कॉपी पेस्ट कीजिए, अपनी फेसबुक पर डालिए या जिस भी साइट पर आपको डालना है उस पर आप लिख सकते हैं। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो अभी आप कितने सालों से, कितनी देर से लिख रहे हैं कविताएं? मैं पिछले, अगर देखा जाए तो बचपन से लिख रही हूँ और प्रोफेशनली मैं 2 साल से लिख रही हूँ। और अब आपके प्रतिलिपि पे कितने फॉलोअर्स हैं? प्रतिलिपि पर मैंने डाली फॉलोअर्स, मैंने देखे नहीं और मैं प्रतिलिपि से भी अधिक अपनी टाइमलाइन फेसबुक पर डालती हूँ ज़्यादातर, और प्रतिलिपि पर समय समय पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं जी। उस पर कविता लेखन की या कहानी लेखन की कविताएं होती हैं, उस पर मैं डालती हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। भागवत सिंह जी, आपके बारे में थोड़ा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ना। आपका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बड़े छोटे गांव से आते हैं, आपके गांव के बारे में थोड़ा बताइए, और दिल्ली कैसे आए उसके बारे में बताइए हमें। बेसिकली मैं 4-5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो जो गांव से आया, अंधेरे से उजाले में जो आया हूँ, तो मुझे काफ़ी बदलाव लगता है। दिल्ली जैसा शहर, यहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी आपके फास्ट गांव में कितने लोग हैं? 250 लोग हैं। 250 लोग हैं। 250 लोग। वहाँ इंटरनेट होता है क्या? अभी 1-2 साल से चलना स्टार्ट हुआ है 2G, बेसिकली 2G। वहाँ 4G वगैरह नहीं है? वहाँ 4G अभी भी नहीं है। वहाँ बिजली है? बिजली अभी पिछले 6 महीने पहले ही आई है गांव में बिजली, और रोड है नहीं वहाँ पे आज।
और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं गांव में। आप जो हैं इस छोटे शहर से बड़े गांव में छोटे गांव से बड़े शहर में आए हैं, तो उसमें आपको ऐप यूज़ करने से कुछ गांव को कुछ बेनिफिट मिला है? बिल्कुल। क्या हुआ है बताइए। गांव में जो भी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, वो इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये चीज़ें को देखना हर किसी का काम है कि गांव में ये चीज़ें होना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में कई काम ऐसे हुए कि लोगों ने कागज़ों में दिखा दिया, हकीकत इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, पैसे खा गए। कि वो चीज़ को हमने देखा तो हमने गांव में बात करी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तुम लोगों ने ये पैसे डाले कहाँ? तो उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री खा गया, कुछ कुछ खा गया। लेकिन जब तक लोग इसी इंटरनेट के माध्यम से जागरूक नहीं होंगे और लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक ऐसा होता रहेगा। और ये सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको कैसे पता चलता है? इंटरनेट, गूगल पे क्या करते हैं आप, क्या सर्च मारते हैं? यही गांव की जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, हाँ जी, उन योजनाओं के बारे में मैं देखता रहता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, पेपर के माध्यम से उस चीज़ को सर्च करता हूँ गूगल में। सर्च कैसे करते हैं आप? वॉइस टाइपिंग। वॉइस टाइपिंग इस्तेमाल करते हैं। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप वॉइस टाइपिंग? मैं 2 साल से वॉइस टाइपिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वॉइस टाइपिंग में कुछ फ़र्क दिखा है आपको? बिल्कुल। क्या हुआ है? एक तो हमें वो आँखों का जोर नहीं पड़ेगा, उससे आप जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। जी। आपको इंग्लिश आती नहीं है तो उससे आप हिंदी में कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग, लैंग्वेजेस चेंज। जी। और जब सर्च करते हैं आपको हिंदी में रिजल्ट आता है? आता है, बिल्कुल आता है। जी। ये ऐसे क्या है इंटरनेट की दुनिया ने। जी जी। ध्रुव कुमार जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। आप बाराबंकी में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, थोड़ा बताइए। लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरा जिला है बाराबंकी। कहने को तो राजधानी के सबसे पास है, लेकिन सुविधाओं के मामले में अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इंटरनेट में पेटीएम और भीम ऐप, ये शहर को छोड़ दिया जाए तो देहात में अभी लोग इसका नाम तक नहीं जानते। कैसे इस्तेमाल होता है ये दूर की चीज़ है। और ज़्यादातर हमारे उधर की आबादी अभी पिछड़ी और गरीब है। और आप क्या काम करते हैं? सर, मैं पेशे से जो है वीडियोग्राफर हूँ, वीडियोग्राफी का काम करता हूँ। तो शादी का वीडियोग्राफी, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट, वो सब कर लेते हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया है। आप बता रहे थे कि आपका जो दुकान है, आप फेसबुक पे पेज बना चुके हैं। उसका क्या फ़ायदा हुआ? सर देखिए, पेज बनाने के बाद जब उसमें हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं अपना ज़िला, और एज सिलेक्ट करने के बाद वो उन लोगों को दिखती है। अब सपोज कीजिए 100 लोग बैठे हैं, किसी एक को अच्छे वीडियोग्राफर की ज़रूरत है। अब उसने सर पेज जब देखा, उस पर हमारा नंबर पड़ा हुआ है। लेकिन वो पेज कैसे देखते हैं? सर पेज शो प्रमोट किया करता। आप प्रमोट करते हैं पेज को? नहीं सर, फेसबुक के जरिए हम लोग प्रमोट कराते हैं। कैसे प्रमोट कराते हैं उसके बारे में बताइए। उसको जो है पेज को प्रमोट कराने के लिए हम उसको फीस देते हैं। फेसबुक। अच्छा, आपका बजट है, आप फीस देते हैं? जी सर। कितना खर्च करते हैं आप फेसबुक? सर उसका अलग अलग रेट है, 5,000 10,000 सालाना से। ठीक है। अलग वो तो जो हमारा मैनेजमेंट देखते हैं वो उनका काम है। और आपने बताया था कि वो टारगेटिंग भी करते हैं उसका? जी। कैसे? जी, ये तो सब मेरे जो मैनेजमेंट भाई देखते हैं, ये सब उनके जिम्मे। मेरा काम है रिकॉर्डिंग करना, कहाँ साइट लगी हुई है मैं वहाँ जाऊँगा, रिकॉर्डिंग करूँगा, चलाओ। लेकिन आप बता रहे थे कि यूपी में, इस जिले में, वो सब। वो तो फेसबुक पर जब आप पेज बनाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा प्रमोट करने के टाइम। अच्छा जी। आप किस एज के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं? किस एज के ग्रुप को? जी हाँ। 18 से 30, 18 से 50, इस तरीके के। यूपी में स्टेट लेवल पर जाना चाहते हैं, जिला लेवल पर जाना चाहते हैं, मंडल, ये वो दिखाते हैं, ऑलरेडी दिखाते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज जस्ट आवर जॉब। तो अभी आप बताइए कि आप सब लोगों के पास व्हाट्सएप तो होगा जी, फेसबुक तो होगा जी है, लेकिन नए नए ऐप जो हैं, जो भी आते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग नए कंपनियां बना रहे हैं, नए ऐप बना रहे हैं, उसके बारे में आपको कैसे पता चलता है? देखिए सर, उसके लिए तो 2 तरीके हम लोगों को पता चलते हैं। या तो जैसे मैंने फेसबुक खोला, उस पर लिंक आया या उनका एडवर्टीजमेंट आया कि अभी इसको इंस्टॉल करें। एक तो तरीका वो है, बहुत सिंपल। दूसरा तरीका यह है कि जो अगला इस्तेमाल कर रहा है उसकी खूबी बताता है मुझे कि भाई ये चीज़ इंस्टॉल कर, इससे ये फ़ायदा है।
लेकिन कौन बताते हैं आप? सर जैसे मेरे मेरे मित्र हैं, बाय द वे मैं शेयर चैट चलाता हूँ सर। जी। जब मैं शेयर चैट में नहीं था, आज से लगभग 1.5 साल हुआ, मेरे एक मित्र बैठे हुए थे मेरे साथ में, तो शेयर चैट वो ओपन कर रखे थे, तो मैंने कहा भाई ये क्या है? तो बोले देखो ऐसा है कि फेसबुक के तरीके से ये भी अपना हिंदुस्तान का वो है। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जैसे आप पोस्टें डालते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो। उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया, मुझे पसंद आई, मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैंने इंस्टॉल किया, 2-4-10 दिन चलाया, उसके बाद जब मुझे समझ आया तो मैंने अगले को बताया। सर इस 2 तरीके से जो है पता चलता है नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात। और आप सब लोग वीडियो तो देखते होंगे जी यूट्यूब तो सबके पास है। जी बिल्कुल देखते हैं। यूट्यूब में जो आप देखते हैं जी। और टीवी पे देखते हैं जी। उसमें फ़र्क क्या है? देखिए सर टीवी पे एक कोई चीज़ दिखाने का एक टाइम है, लेकिन यूट्यूब पे आप कभी भी कुछ भी ओल्ड से लेकर के लेटेस्ट तक कभी भी आप सर्च करिए, देख लीजिए। बोलिए बबीता जी। ऑन है। जैसे कि अभी सर ने बताया, मैं भी अपना एक विचार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमें किसी भी नए ऐप के बारे में आज की युवा जनरेशन से पता चलता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो लेटेस्ट ऐप यूज़ करते हैं, और जब वो यूज़ करते हैं हम उनसे पूछते हैं कि बेटा ये क्या कर रहे हो, क्योंकि एज ए अभिभावक या एज ए माँ मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ कि भाई मेरी बेटी अभी 12th में है जो, कि वो क्या इस्तेमाल कर रही है और क्यों कर रही है। तो जैसे अभी इन्होंने शेयर चैट का बताया, ऐसे ही इंस्टाग्राम पर आजकल के बच्चे अपनी स्टोरी डालते रहते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं। हम इस एज में, मेरी वाली एज में, हमें इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मेरी बेटी ने स्टार्ट किया तो मुझे भी लगा कि हाँ अच्छी चीज़ है, और आपके पास जो विधा है, जो आपके अंदर हुनर है, उसको आप दुनिया को दिखा सकते हो इससे के थ्रू। आप में से किसी ने कभी भी एक एडवर्टाइजमेंट को देख के वेबसाइट पे उसे क्लिक करके किसी ऐप को डाउनलोड किया है या किसी किया, चीज़ को मैंने खरीदा किया है? आपने किया है? जी कितने लोगों ने किया है? मैंने भी किया है। अच्छा बताइए। मैंने जब शुरू पेटीएम चला था, भीम ऐप चला था, ये सब चीज़ें मैं यूज करता हूँ, देखता रहता हूँ एडवर्टाइजमेंट की जो पेपरों में आता है। अच्छा, तो आपने पेपर के एडवर्टाइजमेंट पे देख के बताया? जी। वेबसाइट पे कभी कभी फ़ोन पे जब देखते हैं उस पे ऐड आते हैं, उसमें बहुत ऐड आते हैं। हाँ बहुत ऐड तो आते हैं। उसी से परेशानी भी है कि वहाँ एक डालो दूसरा डालो, डाउनलोड करो, तो वो ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अच्छा है। अच्छा है। आप बोल रहे हैं आप भीम का यूज़र है, भीम के यूज़र है। भीम कैसे यूज़ करते हैं आप? भीम ऐप की कहानी, जब नोटबंदी हुई, डिजिटल माध्यम पेमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो उसी समय से हम लोग भी लग गए पीछे कि क्या हुआ जब नोटबंदी हुआ? आपके गांव में क्या हुआ था? मेरे गांव की कहानी थोड़ा जटिल है। मैं गांव गया था, तो गांव में मीटिंग हो रही थी, होती है हमारे गांव में महीने में एक बार। 250 परिवार हैं, तो 250 परिवारों में एक बार होती है मीटिंग। तो वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, उसी समय नोटबंदी हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि ये डिजिटल पेमेंट के बारे में, पेटीएम के बारे में, भीम ऐप के बारे में, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। आपके गांव में बैंक है? बैंक ब्रांच नहीं है। कहाँ है? सबसे 60,000 के पॉपुलेशन पे एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे ब्लॉक में। अभी लेटेस्ट एक पीएनबी का खुला हुआ है। आपके गांव से वो बैंक ब्रांच कितना दूर है? वो है आप 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर हमारा पैदल का रास्ता है। वो 30 में से 10 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, आज भी रोड नहीं है वहाँ पे। और वही 30 किलोमीटर हमारा हॉस्पिटल है, सुविधा। बाप रे। दुर्भाग्य है हमारा। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने यहाँ ये पहुँचाया, वो पहुँचाया, लेकिन ज़मीन पे हकीकत क्या है, पहाड़ों की ज़िंदगी क्या है, कितनी जटिल प्रक्रिया है, ये समझना बहुत मुश्किल है, जो लोग वहाँ पे रहे हैं। तो इस इंटरनेट के आने से कुछ फ़ायदा हुआ है बैंक? बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, तो आज इंटरनेट के माध्यम से ही बैठा हूँ। यही सब चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। शायद मेरे गांव के कई लोग हैं जो आज सुन रहे होंगे, मैंने उनको बताया था ये इंटरनेट के माध्यम से। कई लोग हैं जो सुन रहे होंगे, बड़े खुश होंगे जी बिल्कुल कि इंटरनेट क्या है, बिल्कुल। ये कौन ऑर्गेनाइजर है, क्या हो रहा है, ये क्या दुनिया है, जो ये ऐड आते हैं ये कौन लोग हैं। शायद इन्हीं में से कोई होंगे।
बबीता जी आप बताइए, आपको इंटरनेट से क्या फ़ायदा हुआ है? इंटरनेट से मुझे जो फ़ायदा हुआ है, एक तो कविताएं लिखने का मुझे बहुत अच्छे से मौका मिला लोगों तक पहुंचाने का। दूसरा फ़ायदा जो सबसे अहम हुआ वो ये कि आज से 4 साल पहले मैं बीमार हो गई थी। मेरा लीवर थोड़ा फंक्शनल उसने कम हो गया था, लीवर फंक्शन, और उसकी 2 एंजाइम्स बहुत हाई लेवल पर चली गई थी। मुझे पता नहीं चला, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। लास्ट में जब मुझे बहुत फीवर हुआ एंड आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, कुछ हजम नहीं होता था मुझे, और मुझे बुखार हुआ बहुत तेज़, तो डॉक्टर के पास गई, उसने सारे टेस्ट कराए, तो पता चला कि लीवर में प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे कहा आप एंटीबायोटिक्स खाइए। 15 दिन की एंटीबायोटिक्स खाने पर मुझे बहुत हालत, कोई भी दवाई खाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी, और मैं क्योंकि साइंस ग्रेजुएट हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर मैं लीवर के लिए एंटीबायोटिक्स खाऊंगी तो लीवर पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद हील अप होता है अगर डाइट ठीक की जाए तो मैंने फिर गूगल पर सर्च किया अपनी बीमारी के लिए कि मेरी बीमारी का होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं, जो दादी माँ के नुस्खे होते थे जो हम भूल चुके हैं अब, वो मुझे गूगल ने दोबारा से याद दिलाए। और गूगल से ही मैंने एसिडिटी, मेरी गैस प्रॉब्लम, मेरा लीवर जो फंक्शनल नहीं था, मुझे कुछ हजम नहीं होता था, सब ठीक हो गया। मैंने अपनी डाइट चेंज की, थोड़ा उसमें परिवर्तन लेकर आई, और सब अब फर्स्ट क्लास है। मेरा 10 किलो वजन कम हो गया था और मैं अब आज आपके सामने बैठी हूँ फिट एंड फाइन, बिल्कुल। फैंटास्टिक। बाल गोविंद जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि इंटरनेट के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? जी, मैं तो समझिए कि मेरी जॉब भी एक तरह से समझिए आप टीचर मैं बना हूँ, तो ये इंटरनेट का ही एक जरिया है। और आर्कुट से लेके आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो इंटरनेट का ही एक माध्यम जो मिला हमें आपके द्वारा, ये सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से ही है। जब से स्मार्टफोन नहीं चला था उसके पहले आर्कुट आप लोग जानते ही हैं, तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास पीसी थी और वहाँ से लेके आज तक बस ऐसे ही है। बाकी जब मैं टीचर हूँ तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे हमें डायनासोर के बारे में पढ़ाना है, अगर हमें कहेंगे कि वो टावर के बराबर होता है तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो, या हमें अर्थक्वेक के बारे में बताना है कि वो पृथ्वी हिलती है, कैसे हिलती है, उससे क्या नुकसान है, उससे कैसे अवेयर किया जा सकता है, इसको हम ऐसे सीधे सीधे बता देते हैं मुझे तो वो नहीं जान पाते। तो अब मैं सीधे यूट्यूब पर उसको ओपन करके दिखा देता हूँ तो बच्चे जानते हैं कि क्या डायनासोर है, क्या ज्वालामुखी होता है, क्या अर्थक्वेक है, या कोई भी जैसे राइजोफोरा हमने बताया कि सबसे बड़े फूल होते हैं राइजोफोरा। राइजोफोरा बहुत बड़ा होता है, उसमें एक बच्चा बैठ जाता है, लेकिन अब ऐसे सीधे सीधे बताएंगे तो बच्चे मजाक बनाएंगे कि हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। सीधे उसको मैंने यूट्यूब पर दिखाया या गूगल से दिखाया, अब बच्चे जान गए कि हाँ ये भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि इंटरनेट के ही माध्यम से मैं यहाँ पहुँच पाया, तो ये आपका भी आभार। बढ़िया, धन्यवाद। अब कॉमर्स पे आते हैं। आप किसी ने यहाँ ऑनलाइन पे कुछ खरीदा है कभी? जी ध्रुव कुमार जी, आप बताइए आपका जी, एक्सपीरियंस मैं तो अक्सर सर स्टूडियो के काफ़ी सामान जो है जी वो मंगवाया करता हूँ। जी जैसे लेंसेज हैं जी या सर जो है बैटरीज हैं, जी, तो वो फ्लिपकार्ट के जरिए मंगाया करता हूँ। और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? सर बेहतर बेहतर रहा है? बेहतर रहा। क्यों? मार्केट से कम प्राइस में, जिम्मेदारी से डिलीवरी, और सर मुझे कहीं जाना नहीं है कि मैं अपना टाइम बर्बाद करके लेने जाऊँ, ये नहीं करना पड़ता। बढ़िया है। और और आप इसलिए सर मेरे लिए तो फिट है। और ये लेंसेज जो हैं बहुत महंगे चीज़ होते जी। हैं, उसके पेमेंट कैसे किया आपने? सर कभी कभी तो हम लोग चेक के जरिए कर देते थे, कभी कभी सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं? जी। आप सब लोगों के पास बैंक अकाउंट है? बढ़िया है। आप सब लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है कभी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया है? जी नहीं सर, मैंने नहीं किया। मैंने की। आपने नहीं किया है ऑनलाइन मेरी पेमेंट? शॉप के फर्म से होता है। हाँ, शॉप से किया है जी लेकिन मैंने पर्सनली कभी नहीं किया। जी। आप बताइए, आप भीम के बड़े यूज़र हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डिजिटल पेमेंट्स पे? भीम के साथ तो एक बार कुछ ऐसा भी हो गया कि मेरे कुछ पैसे गलत अकाउंट में चले गए, वो कैसे हुआ? लेकिन वो गलती हमारी भी है। बताइए ना गलती के बारे में। उसमें गलती से जो तो सीख मिलती है हमें। अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे डाल रहा था
और गलती से @UPI भीम हो गया, तो उसमें IFSC कोड डालना था, @UPI हो गया उसमें, लेकिन वो पैसे आज तक मिले नहीं। वो गया तो गया, गया तो गया, लेकिन क्या करें, क्या करें। तब भी छोड़ा नहीं डिजिटल माध्यम, जी बिल्कुल। और आगे भी बताता रहता हूँ लोगों को, और उससे कैशबैक भी मिलता है। बताने से ये भी है कि कैशबैक भी मिलता है, 50-60 रुपये मिल कैशबैक तो जाते हैं सबको आपको। आता है। जी 2G चल रहा है, वो 4G हो जाए, जी यहाँ 6G हो जाए, 5G हो जाए, और ये कमी है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि 4G तो 2G की स्पीड पे चल रहा है इनके लिए। बबीता जी आप क्या बताएंगे? मुझे तो लगता है कि हिंदी वर्णमाला ना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है इनपुट टूल से, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इतनी देर में तो मैं 4 कविताएं और लिख सकती हूँ। और एक गृहिणी होने के नाते घर में भी देखना, बच्चा भी देखना है, पति को भी देखना है, रिश्तेदारी भी निभानी है, सब कुछ करना है। तो मेरे को अपने शौक के लिए प्लीज़ मैं तो चाहती हूँ कि भाई हिंदी वर्णमाला मुख्य रूप से वहाँ पर होनी चाहिए। और एक बात और बोलिए। कि जो हम कहते हैं कि हम सब मोबाइल स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, आज की डेट में काम वाली जो मेड्स हैं, गरीब हैं, वो भी करते हैं यूज़, लेकिन वो यूज़ क्या करते हैं? उनको पढ़ना आता नहीं, इंग्लिश आती नहीं, हिंदी उन्हें आती है थोड़ी बहुत, वो तो एक कॉल भी नहीं कर पाते हैं। अगर हिंदी में वहाँ पर ऑप्शन इजीली अवेलेबल होगा, तभी वो उस फ़ोन को इस्तेमाल कर पाएंगे। बढ़िया सजेशन है जी। एक मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं कॉलेज जाती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं ट्रैवलिंग में। तो बस सर्विस के लिए ऐप्स हैं, बहुत ऐप्स हैं कि बसेस कौन सी आती हैं, कहाँ आती हैं। गूगल मैप्स पे भी आपको पता लग जाता है कितना टाइम आपको लगेगा। लेकिन कोई ऐप मतलब ऐसी नहीं है जो एग्जैक्टली ये बता पाए कि इस बस स्टैंड पे इतने टाइम पे ये बस आएगी। और जो ऐप्स बताती भी हैं वो भी एग्जैक्टली वो टाइम नहीं होता जिस टाइम पे बस आने वाली है। कभी ऐसा भी होता है कि मुझे 1 घंटा बस स्टैंड पे वेट करना पड़ जाता है सिर्फ एक बस लेने के लिए, और आधे घंटे के रास्ते के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता है। जी। तो ऐसी ऐप्स हों जो मतलब थोड़ा एक्यूरेसी से बता पाए कि कितने टाइम पे बस आने वाली है, या बस जैसे- सर्विस मतलब बहुत थोड़ा हाँ, इम्प्रूवमेंट वो तो भारत सरकार का भी फॉल्ट है, बट क्या करें। ध्रुव जी आप बता रहे थे कि वीडियो वगैरह देखने के लिए जी, जी, छोटे गांव में, शहर में, वो कैसे देखते हैं? आप क्या बता रहे थे हमें? सर देखिए, वहाँ इंटरनेट की अभी वो उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, जी और दूसरी चीज़ लोग जागरूक नहीं हैं। जी। वो इंटरनेट को इस्तेमाल भी करते हैं तो गंदी चीज़ें देखने के लिए करते हैं। सर ये हकीकत है, ये नहीं, बहुत ये तो कड़वी सच्चाई हकीकत, है। बिल्कुल हकीकत है, बताइए। वो देखते भी हैं तो बहुत गंदी चीज़ों के लिए देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर वो क्या करते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है। बस उन्होंने देखा कि इस पर ये पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है तो उसको डाउनलोड मार लिया। अगर वो भी नहीं कर पाते तो सर 32 GB की मेमोरी ले लिया और चले गए शहर के अंदर, 10 रुपये फेंके, 200 फिल्मी गाने भरवा के ले आए, देख रहे हैं। बस उनका यही काम है। क्या होता है बताइए फिर से, कहाँ जाते हैं ये? जी मोबाइल की दुकान पे जाते हैं जी, और फिर 10 रुपये फेंके, 200 गाने भरवा लिए। 10 रुपए 200 गाने के जी लिए। रा क्या बात है। वो उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है, हाँ, वो ले आए, 10-5 दिन देखे, इच्छा भर गए, दोबारा दूसरे चले गए, दूसरे भरवा लाए। लेकिन बालगोविंद जी आप बता रहे थे ये कम हो रहा है अभी, क्योंकि इंटरनेट फ्री हो रहा है क्या? ये जियो की देन है सर। जी, यहाँ ये स्पेशली ज़्यादातर तो अभी आपने कंपनियाँ देखी होंगी, वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेती थी। 1 GB 198 रुपीज़ पे करते थे, और बहुत से कंडीशन लगा रखी थी। जब से जियो ने ऐसा किया है कि सभी को लाइन में लगा दिया है, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि गांव देहातों में भी लोग जियो का एक तो नेटवर्क अच्छा आने लगा है, और उससे यूट्यूब है या जो भी फेसबुक है या जो भी ये चीज़ें हैं, और ख़ास तौर से अब लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं वहाँ भी, तो अवेयर तो आ रहा है। और ज़्यादातर पेमेंट भी अब शुरू कर दिया है लोगों ने। जो मैं गांव में रहता हूँ तो लोग मुझसे सीखते हैं कि क्या ये सीखते हैं? जैसे किसी को नहीं आया कोई चीज़, तो भैया ये हमें साइट बता दीजिए, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, तो मैं ज़्यादातर बता देता हूँ।
मेरे पास एक मेरा मित्र है, उसका मोबाइल का दुकान है, तो मैं वहाँ पर बैठता रहता हूँ। मैं मात्र उसी लिए 2-3 घंटे इसलिए बैठता हूँ कि लोगों को जागरूक कर सकूँ कि वो कैसे उसको यूज़ करें। जैसे एंड्रॉयड बहुत लोगों को चलाना नहीं आता है, उनको जीमेल अकाउंट नहीं बनाना आता है, तो मैं वहाँ बैठ के जीमेल अकाउंट उनका बनाता हूँ, सारे फीचर्स उसमें डाउनलोड करता हूँ, ऐप्स डाउनलोड करता हूँ और उनको सिखाता हूँ कैसे ऐसे यूज करिए। वो अक्सर हमारे पास कभी रात में फ़ोन कर देते हैं, कभी हमारे कमरे पर चले जाते हैं, तो ये एक है। और एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सैमसंग आपने देखा होगा, वो कीपैड जो होते हैं उसके हिंदी या जो भी लोकल लैंग्वेज हैं वो A to Z जैसे है, A to Z, क टू ग, ऐसे ही है। तो इसी तरह से जो और भी आपके कंपनियां बहुत सी यहाँ बैठी होंगी, साइट्स हैं और मोबाइल के भी होंगे यहाँ पर लोग, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोकल लैंग्वेज जो है अल्फ़ाबेटिकली A to Z रखें। जैसे गूगल इनपुट से डाउनलोड करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है और लोग उसको देख नहीं पाते हैं, तो वो सीधे सीधे वॉइस मैसेज से ही, वॉइस टाइपिंग से ही वो काम करते हैं। तो साइट भी है, अगर उसमें लोकल लैंग्वेज पहले करें या उसको एक ऑप्शन बना दिया करें हर साइट्स पर, तो ज़्यादा वो एक्टिव होंगे लोग, गांव देहात के लोग भी। टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं यहाँ, और कोई सलाह इनके लिए किसी को बताइए। एज ए मदर मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि जब हम अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा ज़रा ये डाउनलोड करना या सर्च करना गूगल पर कोई साइट, तो कई बार, और ये वाक़या मेरे साथ हुआ था कि एक बड़ी अच्छी मूवी थी डीप ब्लू सी, सबने शायद देखी भी होगी, शार्क्स के ऊपर थी। मेरी बेटी 8th क्लास में थी, मैंने उसको कहा कि बेटा आपको देखनी चाहिए एक मूवी। उसने जैसे ही डीप ब्लू टाइप किया, पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ पर आया होगा। और मैं उस समय वहीं बैठी थी, मैंने उसको किसी बहाने से एक्सक्यूज़ दे करके उसको बाहर भेजा और उसको मैंने बंद किया। मैं ये चाहती हूँ एज ए मदर कि जो इस तरह की साइट्स होती हैं उन पर बैन लग जाना चाहिए। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग ऑल दिस नॉनसेंस, कोई यूज़ नहीं है इसका। इससे दिमाग डाइवर्ट होता है, हम लोग है ना पॉजिटिव नहीं रहते और ना ही हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में। किसी और को कोई और सलाह देना है? So we'll change to questions. Audience से थोड़ा सवाल 10 मिनट के लिए रखना चाहता हूँ. I want to keep 10 minutes for this. तो can we do some audience questions? And please direct your questions to specific members of the audience if you can. We have. And please introduce yourself. Hello. Hi. My name is Mayank. बबीता जी, एटलीस्ट जो अभी आपने लास्ट प्रॉब्लम बताई है उसका कुछ हद तक सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है एडवॉट कंपनी, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे, कोई भी वीडियो कंटेंट सर्च करोगे, मूवी, टीवी शोज़, वो सिर्फ आपको लीगल तरीका ही दिखाएगा वॉच करने के लिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आप सिर्फ वही कंटेंट देखोगे जो कि एडल्ट्रेटेड नहीं है। थैंक यू सर। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। हाँ सर, बहुत ज़रूरी है ये। कोई और सवाल? सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग बहुत सारा न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप उसके लिए पैसे देना चाहेंगे या आपको लगता है फ्री में रहना चाहिए और आपको केवल ऐड दिखाते रहना चाहिए? ये पूछ रहे हैं कि न्यूज़ वीडियो वगैरह जो आप देखते हैं बहुत सारा, उसके लिए अगर यूट्यूब में पैसे लग जाए, फेसबुक में पैसे लग जाए, आप फिर भी यूज़ करोगे? देखिए सर, परोक्ष रूप से हम लोग कहीं ना कहीं उसको पे करते हैं, क्योंकि हम लोग डाटा के लिए पैसे देते हैं। नहीं, डेटा के पैसे तो आप टेलीकॉम प्रोवाइडर को दे रहे हैं। मैं डाटा का पैसा कंपनी को देता हूँ, वो कोई नहीं, आप रिलायंस जियो को दे रहे हैं ना पैसे, तो वो कंपनी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, रिलायंस जियो उनको पैसे नहीं दे रही। यूट्यूब यूज़ करने के लिए अगर यूट्यूब बोले कि आपको 2 रुपये महीना देना पड़ेगा, आप दोगे? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि उससे मेरा जो है काम हल हो रहा है, उसको जो मुझे जानकारी चाहिए वो ला के दे रहा है। जैसे प्रतिलिपि आप यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रतिलिपि बोले कि आपको 10 रुपये महीना देना पड़ेगा, आप फिर भी दोगे? जी यूज़ करोगे? जी, अगर मेरी उससे जो है मेरी समस्याएं समाधान हो रही हैं, मेरी ज़रूरत का मटेरियल वहाँ से मिल रहा है, तो 10 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, मैं मैम से पूछ रहा हूँ। सर मेरे विचार से तो अगर
वीडियो देखने के लिए आप या न्यूज़ देखने के लिए चार्ज लगाएं तो इन अ सेंस वो सही है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एक विशेष तबका है जो लोअर कैटेगरी है, अगर उनको कुछ देखना पड़ेगा और वो पैसा खर्च करना चाहेंगे तो शायद वो उस गलत चीज़ को देखना प्रेफर ना कर पाए। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हर साइट्स पर पैसा लगा देंगे तो वो लोकल जो है वो जैसे गांव देहात में है, मान लो शहर में तो बहुत पैसा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गांव देहात के वाले वो उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, और जो अवेयर या जो चीज़ आप देना चाहते हैं वो गांव तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसा तो हर साइट के लिए नहीं है, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं उसको आप पेड करते हैं, बहुत से चैनल हैं जो पेड करते हैं, पैसा लेते हैं। सर आप ये कर सकते हो ना, जो अबव 18 वाला जो कंटेक्ट है उसको वीडियो उसका चार्जिंग कर दीजिए, उस पर चार्ज लगा दीजिए। युक्ति, आपका क्या राय है? आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आप YouTube देखें और आपको उसके लिए भी पे करना पड़े, बिकॉज अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हाँ वो मुश्किल से 1 महीने का नेट डलवा रहे हैं, तो अगर उनको हर एक ऐप यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो लोग यूज़ करेंगे। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट इज़ द यूज़, मतलब जो लोग पैसे दे पा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो रीचेबल है तो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉर लोअर लेवल तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो लोअर लेवल के लोग ही ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इट शुड बी रीचेबल टू ऑल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबूचंद जी, आपका क्या राय है? लगा लो, उसमें कोई वो नहीं है, बट लंबा, उसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा तो हर कोई कहीं पे भी देता है। जियो की तरह करो लंबा, 85 डे वाला, 90 डे वाला, लंबा करो लेकिन यूज करो। नहीं, सीधी सी बात है, अगर आप लगा लेंगे तो फिर आपका एक तो जियो भी बंद हो जाएगा, दूसरा आपकी साइट भी बंद हो जाएगी। We have a question there. हेलो। Sorry, oh somebody already has the mic. We'll हाँ जी, मैं एक बार जानना चाह रहा था कि आप किस टाइप का सामान ऑनलाइन खरीदते हैं आज की डेट में, और किस टाइप का सामान हिम्मत नहीं जुटा पाए ऑनलाइन खरीदने के लिए कि ट्रस्ट का इशू रहा। तो क्या सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती? कहाँ पर आपको लगता है नहीं यार मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, ये सामान आता था ऑनलाइन पर नहीं लेते हैं? ये बड़े बजट वाली चीज़ें जो डर लगता है ऑनलाइन में, सेफ्टी की वजह से, सिक्योरिटी, कैश एंड डिलीवरी हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन बड़े बजट वाली जो चीज़ें होती है ये हम खरीद नहीं पाते हैं। बाकी छोटे 1000, 2000, 3000 की चीज़ें तो ये खरीद जाते हैं। हाँ, लेकिन जो हाई बजट वाली चीज़ें हैं वो भी खरीदी जाती हैं। मैंने तो सारे फ़ोन्स ऑनलाइन ही खरीदे हैं, स्मार्टफोन्स भी सारे के सारे। अभी मेरी बेटी ने ख़रीदा है 66,000 का, वो भी हमने ऑनलाइन ख़रीदा और वो वर्थ निकला है। मेरा इसमें तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहा है। मैंने जितनी बार ख़रीदा, मैंने एक नोटपैड ख़रीदा वो ख़राब निकला, एक फ़ोन ख़रीदा वो ख़राब निकला, एक ईयरफोन ख़रीदा वो ख़राब निकला। तो मेरा तो बैड लक है इसमें। तो ऐसा जिस कंपनी से मैं ख़रीदता हूँ उसको थोड़ा भरोसा वो उठता जा रहा है। अब नाम नहीं बताऊँगा, हो सकता है कि आपकी यहाँ पर दिक्कत हो। सर मेरा तो एक्सपीरियंस बेहतर रहा है। मैं फ़ोटोग्राफी रिलेटेड लेंस, यहाँ तक कि कैमरे मैंने मंगवाए हैं, और टाइम बाय टाइम और बेहद सेफ्टी के साथ वो मेरे एड्रेस पर आके डिलीवर हो गए। और सर सबसे प्लस पॉइंट यह रहा है कि वही चीज़ अगर मार्केट में 10 रुपये की है, जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है तो वो मुझे 8 रुपये की आके मिली। तो ये सर मेरा टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, इससे अच्छी क्या चीज़ है? युक्ति? हाँ, आई थिंक एज ही सेड कि एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पड़ोस में ही एक ने सोफ़ा सेट लिया, तो 28,000 मतलब उन लोगों के लिए ठीक था कि थोड़ी बड़ी चीज़ होती है, सोफ़ा ले लिया, लेकिन वो सोफ़ा नॉट वर्थ कि फ़ोटो में दिखता है ऑनलाइन कि बहुत अच्छा है, दिखने में शो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद जब वो घर पर आता है तो लगता है कि नहीं यार। तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी ऐसे घर के चीज़ों के लिए कोई नेट यूज़ करना चाहूँगी। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है। आप लोगों के पर्सपेक्टिव से
सारी कंपनीज़ को के बारे में जानना, आप कैसे उन्हें यूज़ करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं बहुत देर से सुन रही थी। आपके पर्सपेक्टिव से एक चीज़ जानना चाहती हूँ, मेरे को लगता है कि आप बहुत ही एक्टिवली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आपको ये भी समझ आता हो कि वो सोशल मीडिया कंपनीज़ बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करती हैं हमारे यूसेज से। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर वो सोशल मीडिया कंपनीज़ या कोई सोशल मीडिया कंपनी आपके यूसेज के लिए आपके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करने लगे, आप उस टाइम के लिए जो आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं उससे आप अर्न करने लगे, तो कैसा रहेगा? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, अच्छा लगेगा। मैं बस एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ एक छोटा सा नाम जिससे आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, वो है सगुन। संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका नाम है शकुना, गुड लक, ऑस्पिशियस। अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिले तो आप प्लीज़ यूज़ करेगा। सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इंडिया से 1 मिलियन यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं इस समय। जनवरी 2018 में मैंने लॉन्च किया था। इस ईयर कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके साथ रेवेन्यू शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पारितोष शर्मा है और मेरा बहुत एक क्विक प्रश्न है आप सबसे। आप लोग व्हाट्सएप आई एम श्योर यूज़ करते होंगे और सभी के ग्रुप्स होंगे, कोई परिवार का ग्रुप होगा, कोई बिजनेस का ग्रुप होगा। आप किस प्रकार का कंटेंट सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं? मतलब अपने जो आपके अंदर से आपको लगता है कि ये मुझे अपने दोस्त से तुरंत शेयर करना चाहिए, वो किस प्रकार का, कुछ मुझे कैटेगरीज अगर आप बता पाएँ कि वो पढ़ाई से रिलेटेड होता है या बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा होता है या एंटरटेनमेंट की, कुछ सलमान खान की हमने वीडियो देखी और तुरंत हमने शेयर कर दिया। किस प्रकार का कंटेंट आप सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं? जी, मैं टीचर हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एजुकेशनल जो हैं वही यूज़ करता हूँ और शेयर भी वही करता हूँ। बाकी गुड मॉर्निंग और ये सब कहीं चले कटे आता है तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। ध्रुव जी? मैं तो एंटरटेनमेंट वीडियोस शेयर करती हूँ जनरली। देखिए सर, मेरा तो मोटिव एक रहता है, मैं यहाँ बैठा हूँ या घर पे रहूँ, कि मैं वो चीज़ अपने ग्रुप में डालूँ जो लोगों के हित में जाए। वैसे मेरा जो पहला वो होता है कविताएं और शायरी। उसके बाद हेल्थ और जानकारी, ये 2 चीज़ें मैं मोस्टली शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में। मैं तो अपना YouTube चैनल शेयर करता हूँ सबसे पहले। He plugs his YouTube channel, I like it. बढ़िया, यही है। और मैं तो सामाजिक न्यूज़ ही शेयर करती हूँ और अपनी कविताएं। एक 2 क्विक क्वेश्चंस। अगर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब छोड़ दिया जाए और व्हाट्सएप छोड़ दिया जाए तो कौन से एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते हैं जो डेली पे या वीकली यूसेज में? और सर, मैं शेयर चैट यूज़ करता हूँ और शेयर चैट में एक अपना सा लगाव है सर। वो एक परिवार की तरीके से लगता है। वहाँ जिस तरीके से आपस में लोग बातें करते हैं, इतना आसान, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं 2.5-3 सालों से उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मेरी अभी 22 तारीख को मुलाकात उसके फाउंडर फरीद सर से भी हुई थी। और आप 2 लोगों ने बोला कि आप मेडिकल जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करते हैं। आप गूगल पे ही जाते हैं किसी चीज़ के लिए या कोई एक ऐसी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है जहाँ जाते हैं? मुझे जो भी जानकारी निकालनी होती है मैं गूगल पे ही जाता हूँ। जी, कोशिश भर तो गूगल ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी मिलते हैं उसके संबंधित, तो वो भी मैं ये डाउनलोड कर रखता हूँ। कोई और ऐसा एप्लीकेशन जो आप लोग यूज़ करते हो? कुछ नया होना चाहिए इसके लिए। मैं सोशल साइट से जितने भी हैं सारे एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करके और उसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 10-11 साल से सोशल साइट से ही संबंधित हूँ और मैं भी खुद अपना चैनल चलाता रहता हूँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग गेम खेलते हैं, मोबाइल गेम? गेम्स खेलते हैं कोई मोबाइल पे? जी। गेम मुझे पसंद नहीं। भागवत जी खेलते हैं? लूडो खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, गेम ही गेम। जी, ऑनलाइन गेम भी हैं, ऑनलाइन ज़्यादा कोशिश करते हैं खेलने के लिए। कैंडी क्रश भी खेलता हूँ। Thank you. I think we'll have to wrap up this Oh, session. we're We're running over time. But I we know could we have have a gone lot for of a questions. Thank you. The panelists are here. Maybe we can ask them later. Over to you, Karan. Well, if I were to leave you with one parting note, in the Gita it is written that empathy is next to divinity. So if you are to really build for these people, try and make more of an effort to have these conversations. It's been a very enlightening exercise for me. I'd like to thank
Dave for coming up with the idea and really helping me put this panel together. Fareed and the team at ShareChat. Fareed, if you're here, take a bow. But thank you so much to the ShareChat team, to Ranjit and Pratilipi. Ranjit, I can see you right there. Thank you so much for helping us. And of course, the team at TIE. Thank you for putting this together. I hope to do this again sometime. Thank you, everyone. Sahil, thank you so much for that. That has to be one of the most innovative panels we've seen. Just a quick note of thanks from our side. Thank you once again.